السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کو آج مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار وہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ وہ مالک بن دینار رب کی اتنی عبادت کرتے تھے، اور رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کی بھی بہت ہی زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ مالک بن دینار کئی بار حج کو گئے، اور جب گھر آتے تو اپنی ماں کے پاس رہتے تو ماں سے خوب محبت کرتے تھے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ایک روز دیکھا کہ انہیں خواب میں کہا جا رہا ہے، یہ اے مالک بن دینار، تم جو رب کی اتنی عبادت کرتے ہو، رب تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کر رہا ہے۔ مالک بن دینار جب وہ خواب سے فارغ ہوئے تو فوراً اپنی ماں کے پاس گئے۔ نیند سے فارغ ہو کر کے وہ اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا، والدہ، کیا آپ مجھ سے تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ تم مجھ سے راضی تو ہو؟ تو ماں نے کہا، بیٹا، میں تجھ پہ قربان، میرا چاند، میرا پیارا بیٹا، تم تو کوئی غلط کام کیے ہی نہیں ہو، تم تو میرے خوب اس کی خدمت کرتے ہو، میں بھی راضی ہوں اور میرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہو۔ جب اتنا مالک بن دینار نے جب اتنا اپنی ماں کے زبان سے سنے تو وہ بنداس اور خوش ہو گئے اور کہنے لگے، شاید یہ کوئی وہم ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن پھر مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوئے تو پھر خواب وہی آ گئی۔ مالک بن دینار فوراً رات میں سو کے اٹھے اور نفل کی نیت کر کے نماز پڑھنے لگے۔ گویا پھر دوسرے دن مالک بن دینار نے اپنی والدہ سے اسی طریقے سے پوچھا، اور والدہ نے بھی کہا، بیٹا، میں تجھ سے خوب راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں اور میرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے راضی ہو جائے، میں ہمیشہ تیرے لیے دعا کرتی ہوں بیٹا۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی تسلی پھر ہوئی۔ اس کے بعد تیسری رات پھر یہ خواب آیا کہ اے مالک بن دینار، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں ہے، وہ فلاں شہر میں ایک اور جس کا نام مالک بن دینار ہے۔ مالک بن دینار فوراً خواب سے جب ان کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے، تب ان کے دل میں کس مکس آ گئی، کب صبح ہو، جلد سے جلد صبح ہو اور میں یہ واقعہ اپنی والدہ کو سناؤ۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے والدہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، والدہ، میں نے یہ خواب دیکھا، کئی روز سے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے آ رہا تھا کہ کیا والدہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ لیکن آپ نے ناراضگی نہیں ظاہر کیا۔ مجھے خواب میں یہ آ رہی ہے کہ ایک اور ہے مالک بن دینار، وہ اس کی ایک بھی عبادت رب قبول نہیں کر رہا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، بیٹا، جب ایسی بات ہے تو اس شخص کو جاؤ آگاہ کرو۔ مالک بن دینار نکلے وہاں سے، وہ چلتے رہے، جا کر جس شہر میں وہ رہا کرتے تھے اس شہر گئے اور جا کر پوچھا کسی سے، کیا تم نے مالک بن دینار کو دیکھا ہے؟ کہا، ہاں، اس کو کون نہیں جانتا ہے بھلا۔ آج کے دور کے اگر کوئی جانے یا مانے تو وہ جیتا جاگتا سچا اور آنکھوں دیکھا آل وہ اللہ کے ولی ہیں، بہت ہی زیادہ ان کی چرچے چلتے ہیں۔ اب یہ مالک بن دینار اور گھبرا گئے کہ یا اللہ، وہ شخص کے بارے میں اتنی تعریف ہو رہی ہے اور وہ اتنے اپنے آپ کو مشہور اتنے سارے علاقے میں ہو گئے ہیں، اور ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ رب اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں کر رہا ہے۔ پتہ کرتے کرتے وہاں پہ گئے، جو ہی پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر کے کہا، کون ہو؟ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا، مجھے پتا ہے تم کیوں آئے ہو یہاں، کیونکہ ہر ایک
समय आता हज करके जब हर एक हाजी आता है तो मुझसे वो यही कहता है अल्लाह का वली कि ऐ मालिक बिन दीनार, तेरी एक भी इबादत रब कबूल नहीं कर रहा, एक भी इबादत कबूल नहीं कर रहा है। अब ये मालिक बिन दीनार जो यहाँ से चले थे, ये वहाँ पहुँच करके सोच में पड़ गए, मैं ये तो बात इनको बतलाया भी ना और ये बात इनको पता है कि रब इसकी एक भी इबादत कबूल नहीं कर रहा, ये माजरा क्या है। तो मालिक बिन दीनार ने फरमाया, क्या है शख्स, बतलाइए आप मुझे क्या मसला है जो रब आपकी एक भी इबादत नहीं कबूल कर रहा है, जबकि आपकी शोहरत चारों तरफ मची हुई है। मैं जो रास्ते से आ रहा था, किसी से पूछता तो कोई कहता उसे कौन नहीं जानता है, वो जीता जागता अल्लाह के वली हैं। वो सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। इन्होंने कहा, आने वाले सुनो, जब आ ही गए हो और तुमने ये बात को शेर दिया है, मेरी माँ जवानी के दस्तूर पे थी। जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, मैं बचपन में ही था कि मालिक बिन दीनार फरमा रहे थे कि उनके वालिद इस दुनिया से पर्दा कर गए। वो शख्स कह रहे थे, मैं बचपन में ही था, माँ के गोद में ही वालिद का इंतकाल हो गया। माँ ने बहुत ही लारो प्यार से मुझे पोस पाल के रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि चोरों का एक मजमा आया और वो चोर गलत इरादे से आ रखा था। मेरी माँ की तरफ उसने गलत इरादे किया। मेरी माँ मुझे घर में छोड़ करके भाग गई। फिर दरवाजे पे मेरी माँ रुक गई और रुक कर कही, हाय मेरा बच्चा है ये, कहीं ये चोर डकैत इसे नुकसान न पहुंचा दे। फिर मेरी माँ फौरन घर में गई और मुझे उठा ली वहाँ से और ले करके वो चली, जंगल में चली गई। पूरे बगदाद में लोग सो रहे थे, लेकिन ये शख्स कह रहे थे कि मेरी वालिदा जंगल में लेकर चली गई। और गरीबी की गुर्बत ये कि माँ के सारी जो थी कई जगह से फटी हुई। और अचानक रब का करिश्मा देखो कि बारिश भी रिमझिम होना शुरू हो गया। इतनी तेज बारिश होने लगी, मेरी माँ एक दरख्त के नीचे छिप गई और छिप करके एक आंचल पे मुझे सुलाती तो दूसरी तरफ से वो आंचल को गाड़ती, पानी को निचोड़ती, फिर वो आंचल को 2-3 बार झाड़ती, फिर मुझे उस आंचल पे सुलाती जो आंचल सूख गया, और जो आंचल गीला हो गया उसे वो फिर से सुखाती। पूरे बगदाद में लोग सो रहे हैं, मेरी वालिदा मुझे लेकर रंग जंगलों में पूरी रात रहे। जब सुबह हुई तो लोगों ने, क्योंकि उनकी वालिदा ने चोरों को पहचान लिया था, तो चोरों ने आकर कहा, अगर तुम मेरा नाम ले ली तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा कि तुमने मुझे गलत इरादे से अपने घर में बुलाई थी। ये डर गई, खामोश हो गई, नहीं कुछ कही। तब उसी वक्त मेरी माँ ने रब की बारगाह में वो आंचल उठाकर दुआ किए, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं जो इतनी गरीब हूँ, गरीबी का आलम यह है कि पाँव में चप्पल भी नहीं है, नहीं रहने के लिए मकान है। परवरदिगारे आलम, जितना दुख और मुसीबत तूने मुझे दिया मैंने रख दिया। मेरे औलाद को या रब इतना आला मकाम देना, इतनी इज्जत और शोहरत देना कि इसे कभी भी किसी दूसरे इंसान के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। मेरी माँ की दुआ थी कि रब ने वो फौरन ही इस दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, और जो मैं जवान होता गया मुझे तरक्की मिलती गई, यहाँ तक कि मैं गांव का लीडर बन गया। जब लीडर बन गया तो लोगों ने मुझसे पूछा, लोग मुझसे सवाल पूछने आते थे, सही और गलत क्या है, सही और गलत का फैसला कर रहा हूँ।
میں सरपंच के टाइप पे बन गया, गांव का मुखिया बन गया, लीडर बन गया, फैसला करने लगा लोगों का। उसी दरमियान फिर उसी तरीके से एक और हादसा हुआ। वो भी देवा थी बेचारी, चोर उसके घर में आया। इन्होंने भी चोर को पहचान लिया और चोर ने कहा, अगर तूने किसी को कह दी तो मैं कह दूंगा ये गलत है, इसने मुझे बुलाई थी अपने पास रात में गलत इरादे के साथ। ये बेवा उनकी माँ के पास भी गई और कहने लगी, वालिदा आप तो जानती हो ना देवा का क्या हाल होता, बस आप समझ लो वो चोर गलत रास्ते पे है, मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, वो चोर गलत इरादे से मेरे घर में आया था। इतना कहना था। बतलाए मालिक बिन दीनार के वो तैयार हो रहे हैं फैसला सुनाने के लिए उसी औरत का। तो इन्होंने कहा, है वालिदा, वालिदा खाना तैयार है तो खाना आप मुझे खिला दो, क्योंकि मुझे जाना है, एक अहम फैसले को सुनाना है। तो वालिदा ने कहा, बेटा सुन ले, खाना मैं तुझे उसी वक्त खिलाऊंगी, क्यों मैंने तुझ पे इतना किया, बस तू मेरा एक काम कर दे। उन्होंने कहा, वालिदा जान कुर्बान है, बोलो मैं क्या करूं। कहा, बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, इस औरत के हक में फैसला सुना दे। हाँ, उस चोर की बात को मत मानना, वो तुझे डराएंगे धमकाएंगे, वो गवाह सबूत लेकर आएगा, लेकिन उसकी बातों को मत मानना, फैसला इस औरत के हाथ में कर देना, तभी मैं तुझे खाना खिलाऊंगी और मैं तुझसे राजी भी हो जाऊंगी। मैंने जो इतनी दिन तेरी खिदमत किया, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज़ मुझे पूरा कर देना। ये जब रास्ते में निकले, जब रास्ते में जा रहे थे तो उन लोगों ने, चोरों और चोरों के सरदार ने सब मिल कर के इन्हें शरबत के बहाने इन्हें शराब पिला दिया, और शराब में इतने मदहोश हो गए ये पी करके कि जब ये फैसला सुनाने लगे थे इनको खुद पता नहीं रहा कि मैं फैसला किसके तरफ सुनाऊं, ये शख्स फैसला किसके तरफ सुनाऊं। तो उसने ये कहा कि ये औरत ही गलत है। इतना कहा और औरत के खिलाफ फैसला दे करके वो जब चला वहाँ से, क्या है वालिदा अब तो खाना दे दो। उन्होंने कहा, दूर हट जा मेरी नज़रों से, मैंने तुझे क्या इसी दिन के लिए पोस पाल कर इतना बड़ा किया था कि तुम आज मेरी एक बात भी नहीं माना। मैंने तेरा हर एक बात माना। ये शराब के नशे में थे, ये इनसे बर्दाश्त ना हुई, माँ बोलती चली गई। इन्होंने अपनी माँ को धक्का दे किया अपने हाथ से। अपने हाथ से जब इन्होंने अपनी माँ को धक्का दे दिया तो ये उस टाइम भट्टी में रोटी बना करता था, खाना बनाया जाता था। उनकी माँ भट्टी में गिर गई और चल गई। मालिक बिन दीनार को जब होश आया, वो मालिक बिन दीनार जिसकी एक भी इबादत कबूल नहीं की जाती थी, उन्होंने अपनी हाथ को काट करके गले में टांग लिया और मालिक बिन दीनार को दिखला दिया कि ऐ आने वाले ऐ अल्लाह के वली, देखो जिस दिन से मैंने अपनी माँ को धक्के दिया था वो आग में गिर गई थी, मैंने उसके लिए ये हाथ को काट कर अपने गले में टांग लिया। जब सुनना था मालिक ठाटी खराब है, सारे पसीने में पसीने तरबतर हो गई कहानी सुन करके। उन्हें कहा, अल्लाह तेरी गुनाहों पे। मालिक बिन दीनार ने दुआ किया, परवरदिगार आलम तुम इस गुनाहों को बख्शे, इसकी गुनाहों को जिस तरीके बख्श दे, हमारे वालिदा की वतीले के सदक़े में परवरदिगार आलम 6 बख्श दे।